Hi everyone, I'm back with another video after so very long. So, exams are lined up post lockdown, such as DSSB and other teaching exams. So, if you want to test your knowledge of geography, quickly dive into the video. And why am I speaking so much English? This video is in Hindi. तो ओके सो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के क्लास 9th एनसीईआरटी पे बेस्ड. हर एक लाइन में से कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू आर गोइंग थ्रू एनसीईआरटीज, जस्ट गेट इनटू द वीडियो एंड टेस्ट योरसेल्फ. ओके, सो ये एक छोटा सा स्कोर कार्ड है. अगर आपके 65 अबव मार्क्स आते हैं देन एक्सलेंट, 55 अबव आते हैं तो इट्स गुड, 40 to 55 you need practice, and below 45 is you're standing nowhere. So let's get started into the video. Oops again. Okay, the mainland extends between latitudes A 8 degree 4 minutes north to 36 degree 6 minutes north, B 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, C 8 degree 4 minutes south to 97 degree 25 minutes north, and D is none of the above. Okay, so what is the latitudinal extent of India? Yes, you guessed it right. The right answer is B, 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. So see, if this is India, then बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ को ऊपर से स्टार्ट करते हैं एंड देन दे कम टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ ऐसे साउथ में. बट दिस इज़ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. इसका उल्टा होता है एक्चुअली. नीचे होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड ऊपर होता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. Alright, moving on. Read the following statement and answer. First, the longitudinal extent of mainland of India is between 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. Second, the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. A, 1 is true, 2 is false, B, 1 is false, 2 is true, C, both are true, D, both are false. Alright, so the right answer is C, both are true. सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इंडिया का एक्सटेंट इतना ही है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट, एंड ये टोटल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है अबाउट 30 डिग्रीज. इट्स नॉट एग्जैक्टली 30, इट्स 29 पॉइंट समथिंग, तो उसे हम 30 मानते हैं. सो यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर. 37 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू, सॉरी मैंने यहाँ ईस्ट बोल दिया, ये नॉर्थ था, एंड ये भी नॉर्थ, ये ईस्ट, एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. सो दिस इज़ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन विच इज़ इंदिरा पॉइंट got submerged under the sea water in dash year during the tsunami. So if you're following the news, or maybe 2004 is like you must be in your childhood days, तो tsunami जो आई थी that was in the year, yes you played it right, it's 2004. Next, India's southernmost point is at A, 8 degree 4 minutes north, B, 8 degree 4 minutes south, C, 6 degree 45 minutes north, D, 6 degree 45 minutes south. India's southernmost point. So if you are playing carefully, then you must have seen in the previous question कि India's southernmost point जो है that is Indira point, and Indira point जो है ये mainland का part नहीं है,
ये मेनलैंड से और भी ज़्यादा नीचे आता है. सो विच मीन्स दैट द आंसर इज सी, 6 degrees 45 minutes north. See here, if you can see this map over here, तो आपको दिखेगा 6 degrees 45 minutes minutes north, sorry. So this is actually a part of the Andaman and Nicobar Islands, and it got submerged under water in 2004. अब ये exist नहीं करता. Next, India's land boundary is about 15,100 kilometer, 15,200, 15,300, 15,400 kilometers. I hope you are noting your score. So the right answer is B, 15,200 kilometers. तो इंडिया की जितनी भी लैंड बाउंड्री है वो सब 15,200 किलोमीटर्स में है. Next, total length of the coastline of the mainland of India, including the islands, is, options are given below. So the right answer is 7,516.6 kilometers. Yes, and ये जो डेटा है ये आइलैंड्स को इंक्लूड करके है. कोस्ट लाइन से हमारा मतलब क्या है? कोस्ट लाइन से हमारा मतलब है पेनिनसुलर पार्ट, यानी कि जहाँ जहाँ पर वाटरी एरिया है हमारा. नेक्स्ट, south of about dash degree north latitude, India begins to taper and extend towards the Indian Ocean. 22 degree, 23 degree, 20 degree, 25 degree. Okay, so the right answer is 22 degree. 22 डिग्रीज के बाद से इंडिया जो है वो टेपर होना, यानी कि नीचे से संकरा या पतला होना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 degree 30 minutes east, passing through dash is actually a dash over here, is taken as a standard time for the whole country. Allahabad, आलमगीरपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन कहाँ से पास करता है? सो इफ़ यू हैव नोटिस, दीज आर ऑल द एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, एंड द राइट आंसर इज मिर्ज़ापुर. नेक्स्ट, Suez Canal was opened in A 1869, B 1862, C 1864, D 1868. So the right answer is A 1869. Suez Canal 1869 में open हो गया था. And here you can see this diagram, this map over here. यहाँ दिखा रहा है कि Suez Canal यहाँ पर है. This is basically Egypt. ओके, इजिप्ट इन अफ्रीका. एंड अगर हम यूरोप से लेकर इंडिया आना चाहते थे तो हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन से पास होना पड़ता था, विच वुड बी नियर टू 19,800 किलोमीटर्स. बट आफ्टर वी हैव ओपन द स्विस कैनाल, दिस डिस्टेंस हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ लॉट. नेक्स्ट, आवर नेशनल एंथम वॉज ओरिजिनली composed in Bangla by Rabindranath Tagore. It was adopted in Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on which date? Okay, so national anthem originally बांग्ला में थी and हिंदी version इसका कब accept हुआ था? So the right answer to this is 24th January 1950. A lot of students may think कि 26 जनवरी इसका आंसर होगा क्योंकि वही हमारा रिपब्लिक डे होता है, बट नो, द आंसर इज़ 2 days बिफोर दैट, विच इज़ 24 January 1950. नेक्स्ट, China is the dash largest country in the world. Okay, so since China is so much in news, तो China थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट या सेकेंड लार्जेस्ट, कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? The right answer is fourth largest country, and
It is the second most populous country in the world. Did I say second? No, it's first. Okay, so Russia, the first largest country is Russia, then Canada, then USA, then fourth is China, Brazil, Australia, and the seventh largest country is India. Next question, again a Suez Canal question. Since the opening of Suez Canal, India's distance from Europe has been reduced by how many kilometers? 6,000, 7,000, 7,500, 6,500. So the right answer is C, 7,500. So India's distance had been reduced to 7,500 kilometers. Next, the states which do not have any international boundary or lie on the coastline. छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव. ऐसी कौन सी स्टेट है जिनकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री या कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है? सो द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़. See, you can see here Chhattisgarh is a landlocked state and it does not share any coastline or international boundary. Next, Pakistan shares the boundary with how many states? 3, 4, 5, 2. So the right answer is 3. Now how come it is 3? That you are going to comment in the comment section below. Next, Gulf of Mannar separates India and Sri Lanka, India and Pakistan, India and Myanmar, India and Maldives. Yes, so it's a pretty easy question. The right answer is A, India and Sri Lanka. Okay, apart from Gulf of Mannar, Pak Strait also separates India and Sri Lanka. The number of union territories on the western coast of India. So how many union territories are there on the western coast of India? 2, 3, 4 or 5? The right answer is 3. How come there are 3 union territories on India? Let's have a look at the map. The first one is Daman and Diu and Dagra and Nagar Haveli. Yes, they are one single unit because they are merged now. Then second is Mahe or Puducherry, and the third one is Lakshadweep. So there are in total 3 union territories on the west coast of India. Next, states through which the Tropic of Cancer passes. Very easy question and a very repeated question. So how many states are there through which the Tropic of Cancer passes? It is 8. B, it is 8. Let's count how. Okay, so if we start from Gujarat, then Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, Mizoram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in total there are 8 states through which the Tropic of Cancer passes. Next, consider the following statement. First, the crust of the earth has been formed out of The crust of the earth has been formed out of 6 major and some minor plates. The movement of the plates result in building up of stresses within the plates and the continental rocks above it. A, both are true. B, both are false. C, 1 is true, 2 is false. D, 1 is false, 2 is true. Okay, so the first statement is saying that crust जो है वो 6 major plates की बनी है और कुछ minor plates हैं. Then second is saying that इन plates की movement से ही जो
रॉक्स होते हैं वो बिल्टअप होते हैं, द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस। यस, इन मूवमेंट, इन प्लेट्स की मूवमेंट से ही स्ट्रेसेस बिल्टअप होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली राइट। एंड ये भी ठीक है कि क्रस्ट जो है वो कुछ मेजर एंड माइनर प्लेट्स से बनी है, बट वो मेजर प्लेट्स जो है वो 7 हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ फॉल्स एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रू। D part is the correct answer. Next, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with, yes, you guessed it right, it's Nepal. Obvious सी बात है, चाइना नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश चाइना से कनेक्ट नहीं होता। भूटान नहीं हो सकता क्योंकि उत्तराखंड, सॉरी, वेस्ट बंगाल भूटान से कनेक्ट नहीं होता। देन द राइट आंसर हैज़ टू बी नेपाल। नेक्स्ट, व्हेन प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर दे फॉर्म ए कन्वर्जेंट बाउंड्री, बी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, सी डाइवर्जेंट बाउंड्री, डी नन ऑफ द अबव। जब दो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली पास करती है तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। So the right answer to 20th question is B. See, the plates here are moving like this. So, sorry, like this. So this is a transform boundary. Next, Gondwana land included A. India, Australia, South Africa, South America, Antarctica. B. India, Australia, Asia, South Africa, South America. C. India, South Africa, South America, Antarctica. D. India, Africa, Australia, South America, Antarctica. Okay, so the options are to be eliminated. First one, India है, Australia है, South Africa है, South America है, Antarctica है. Okay, ठीक लग रहा है। तो एक्चुअली हमारा काम फर्स्ट वन से ही हो जाता है, बट स्टिल अगर हमें एलिमिनेशन भी अपनाना है तो हम इसमें से देख सकते हैं कि एशिया बिल्कुल भी नहीं होगा। देन इधर से ये भी ऑप्शन ठीक है, बट देन द फर्स्ट वन इज़ बेटर। देन डी पार्ट में अफ्रीका नहीं हो सकता। Okay, it's South Africa. So the right answer to this question is A. India, Australia, South Africa, South America and Antarctica. This is the Gondwana land. Okay, next, it is a large scale depression in the earth's crust containing very thick deposits. ऐसे large scale depression को हम क्या कहते हैं? जिसमें कि बहुत सारे डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं। सो ए जियोसिंक्लिन, बी एंटीक्लाइन, सी हिंज लाइन, डी एक्सियल प्लेन। द राइट आंसर इज जियोसिंक्लिन। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ जियोसिंक्लिन एंड यहाँ पे सी है, बेसिकली ये टेथिस सी की बात हो रही है। देन यहाँ प्लेट्स मूव करती हैं और रॉक्स पर कंप्रेशन पड़ता है। जब प्लेट्स और ज़्यादा मूव करती हैं तो यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन होने लगती है, विच इज़ फोल्ड माउंटेन, एंड दिस माउंटेन इज़ नन अदर देन द हिमालयास। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। एंड हिमालयास का जियोसिंक्लिन का नाम क्या है? हिमालयास के जियोसिंक्लिन का नाम है टेथिस सी। सो ये जो सी है, दिस इज द टेथिस सी। नेक्स्ट, द पेनिनसुला प्लेट्यू डज नॉट कंपोज ऑफ, डज नॉट लिखा है, ए सेडिमेंट्री, बी इग्नियस, सी मेटामॉर्फिक, डी नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि सेडिमेंट्री जो होता है ये जनरली हिमालयाज़ में पाया जाता है। सो इग्नियस जो है वो पेनिनसुला में होता है, मेटामॉर्फिक भी होता है बिकॉज ऑफ इंटेंसिव प्रेशर। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए सेडिमेंट्री।
Distance covered by Himalayas 3400, 4400, 5500, 2400 kilometer. तो the right answer is D, 2400 kilometer. I hope you are noting down your score, because it is going to be fun if you note down the score, and then only you will know where you land, whether on the mountain or in the sea. Okay, next, consider the following statements and answer. First, the width of Himalayas varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. Second, the altitudinal variation are great in the eastern half than those in the western half. A, 1 is true, 2 is false. B, 1 is false, 2 is true. C, both are true. D, both are false. ओके, तो एक बहुत सिंपल सा डेटा है कि हिमालय की विड्थ जो है कश्मीर में 400 है और अरुणाचल जाते जाते 150 यानी कि पतली होती जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है. देन ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. ऑल्टीट्यूड्स में वेरिएशन यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे पहाड़ जो है वो कहाँ पर है, वो ईस्ट में ज़्यादा है या वेस्ट में ज़्यादा है. तो द राइट आंसर इज़ ईस्ट में ज़्यादा है. ठीक है, तो सॉरी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. दैट मीन्स बोथ आर ट्रू. नेक्स्ट, द कोर ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ नीस, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, शेल. ग्रेट हिमालयाज यानी कि हम बात कर रहे हैं हिमाद्री की. हिमाद्री के अंदर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो सेडिमेंट्री होते हैं. सेडिमेंट्री क्यों होते हैं? क्योंकि जो रिवर्स होती है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है. तो इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है? द राइट आंसर इज ग्रेनाइट. नेक्स्ट, दिस रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली compressed एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल हिल्स. तो कौन से ऐसे रॉक हैं, कौन सी ऐसी रेंज है जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन से बनी है? द राइट आंसर इज हिमाचल. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हिमाद्री के ऊपर बहुत ही लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, तो उसकी जो सेकंड रेंज है वो है हिमाचल, जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन से बनी है. नेक्स्ट, महाभारता रेंज इज फाउंड इन हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स या पूर्वांचल. द राइट आंसर इज हिमाचल. महाभारत रेंज इज फाउंड इन हिमाचल रीजन. नेक्स्ट, longitudinal valley lying between lesser Himalaya and Shivaliks is known as. उन longitudinal valleys को हम क्या कहते हैं जो कि हिमालय और लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में पाई जाती है. डून्स, रेंजेस, गुल्स, नन ऑफ द अबव. So the right answer to 29th is A, dunes. Dunes के एग्जाम्पल जैसे देहरादून, पाटली डून, कोटली डून एट्सेट्रा. मैचिंग, एक तरफ हमें रिवर्स दी हुई हैं, एक तरफ हमें हिमालयाज दिए हुए हैं. इंदस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊँ, काली एंड तीस्ता नेपाल, तीस्ता एंड दिहांग असम. ओके, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि दिहांग एंड हमें पता है कि ये आसाम का वर्ड है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड है. सो दिस इज़ करेक्ट, तीस्ता एंड दिहांग. देन नेक्स्ट है इंदस एंड सतलुज रिवर. इंदस रिवर हमें पता है कि पंजाब, पाकिस्तान इस साइड पर है. सो दैट मीन्स ए इज़ ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो हमारे 1 और 4 बिल्कुल ठीक होते हैं. और 1 और 4 का जो ऑप्शन है वो है बी. तो हमारा राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 यानी कि सतलुज एंड काली रिवर कुमाऊँ है और काली और तीस्ता रिवर नेपाल है. सो वी कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर ऑल्सो. यहाँ पे देख सकते हैं हम इंदस रिवर और सतलुज रिवर, इन रिवर्स के बीच में हमारे पंजाब हिमालयाज आ जाते हैं.
यहाँ पर दिहांग दिबांग के बीच में हमारे आसाम हिमालयाज़ आ जाते हैं। देन यहाँ नेपाल हिमालय, और उससे पहले हमारे कौन से थे, कुमाऊँ हिमालयाज़। नेक्स्ट, विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज़ इन इंडिया? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है? तो अगर हमें ऑप्शंस ना भी पता हो तो भी ये आंसर पता होना चाहिए कि हमारी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है ब्रह्मपुत्रा, विच इज़ नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बियॉन्ड द डैश गॉर्ज द हिमालयाज bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as पूर्वांचल हिल्स। ओके, तो हमें पता है पूर्वांचल हिल्स और पूर्वांचल हिमालयाज जो हैं वो इंडिया के ईस्टर्न फ्लैंक में जाके एकदम से शार्प टर्न करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, विच इज़ फॉर श्योर। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक गॉर्ज की। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज हमारी डीप वैलीज, वी शेप डीप वैलीज के बीच में से ट्रिब्यूटरी जारी होती है, उसे कहते हैं। सो दिहांग दिबांग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज दिहांग। दिहांग जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, एंड ये यहाँ लाई करती है। लेट्स सी, दिहांग, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो एक शार्प टर्न लेती है, और ये वाले जो हिमालयाज़ हैं, यहाँ आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, ये जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स को हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। नेक्स्ट, पूर्वांचल हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग डैश विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो पूर्वांचल हिल्स जो हैं वो कौन से टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी हैं? Oh, I hate it. Okay, anyway. Purvanchal hills are composed of strong dash which are sedimentary rocks, dolomite, conglomerate, sandstone, all. So the right answer is sandstones. Purvanchal hills जो हैं वो sandstones की बनी हैं। Next, Patkai hills are part of Himadri, Himachal, Shivalik, Purvanchal. 34, the answer is D part, पूर्वांचल हिल्स। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, पटकाई, खारो, खासी, जयंतिया, ये सारी हिल्स हमारी पूर्वांचल की हिल्स हैं। नेक्स्ट, इन द लोअर कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यू टू जेंटल स्लोप्स द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के लोअर कोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो नदी की स्पीड होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। तो तब वो क्या बनाती है? डेल्टा, रिवरीन आइलैंड्स, एस्चुअरीज, नन ऑफ द अबव। वेल, द राइट आंसर कुड हैव बीन डेल्टा, लेकिन हम लोअर कोर्स की बात कर रहे हैं, लोअर मोस्ट कोर्स की नहीं। सो द राइट आंसर टू दिस इज रिवरीन आइलैंड्स। What is a riverine island? You can see here, जब ये एक रिवर है और उसके बीच में एक लैंड है जिसके चारों साइड पर पानी है, लेकिन वो पानी समुद्र का नहीं, सी वाटर नहीं है या ओशन वाटर नहीं है, दैट इज़ रिवर। सो इट इज़ कॉल्ड अ रिवरीन आइलैंड। द लार्जेस्ट inhabited riverine island in the world is मजुली, मजलिस, भोर, जोहादन। दुनिया का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड, इट इज़ ए मजुली विच इज़ इन इंडिया। नेक्स्ट, द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, स्ट्रीम्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटरफॉल। Well, the right answer to this is A, tributaries. Well, no, sorry. The right answer to this is distributary.
क्यों है इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटरी? क्योंकि वो बोल रहा है कि जो रिवर होती है, मेन रिवर जो होती है, वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो मेन रिवर है, जब ये छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड होती है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जबकि छोटे छोटी रिवर्स एक बड़ी रिवर को जॉइन करते हैं तो उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद दिस डायग्राम। सी, यहाँ जो मेन रिवर है वो डिवाइड हो रही है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोला गया है। यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स मेन रिवर को जॉइन कर रही हैं तो उसे ट्रिब्यूटरी बोला गया है। नेक्स्ट, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन डैश एंड डैश रिवर। कौन सी रिवर्स के बीच में गंगा प्लेन्स एक्सटेंड करते हैं? गंडक तीस्ता, घाघर तीस्ता, गंगा कोसी, घाघर कोसी। वेल, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनकी भी कुछ डिविजन्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 4 डिविजन्स। तो उनमें से एक है गंगा प्लेन, एंड जो गंगा प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? घाघर एंड तीस्ता। नेक्स्ट, consider the following statement and answer. According to variation in relief feature, northern plains can be divided into 4 regions. The region of Indus and its tributaries is dominated by doabs. तो अभी हमने ये बात करी थी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 रीजन्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने ही बता दिया, करेक्ट है। सेकेंड, द रीजन ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज डोमिनेटेड बाय दोआब। एब्सोल्युटली राइट। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उनमें दोआब्स पाए जाते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क इज इन विच रीजन? नॉर्मली स्टेट पूछी जाती है लेकिन हम रीजन पूछ रहे हैं। भाबर, तेराई, भांगर, खादर, किस रीजन में दुधवा नेशनल पार्क है? सो द राइट आंसर इज तेराई रीजन। तेराई रीजन के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं एंड हेंस यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। कैन यू टेल मी कौन सी स्टेट में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है? Please answer in the comment section so that I know that you are playing. 41. Consider the following statement and answer. South of Bhabar Belt, the streams and rivers re-emerge and create wet, swampy, marshy area known as Terai. तो आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें वेट, स्वॉम्पी, मार्शी एरिया इन्हीं से पता चल जाती है कि तेराई, हिंदी में तेराई होता है बहुत ही ज़्यादा पानी वाला चीज़। सेकेंड, द फॉरेस्ट ऑफ तेराई हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। क्या ये सच है? येस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग यू टाइम टू आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल। 42. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। ए भाबर, बी भांगर, सी तेराई, डी खादर। ओल्ड एलुवियम, तो ये जो ओल्ड एलुवियम होती है ये कौन से रीजन में पाई जाती है? ओल्ड एलुवियम हमारी भांगड़ रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन दैट इज रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड इज फर्टाइल फॉर इंटेंसिव कल्टिवेशन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो हर साल रिन्यू होता रहता है? तो जो हर साल नया बनता रहेगा या रिन्यू होता रहेगा उसे हम कहेंगे खादर। देखो, जो भांगड़ होती है दैट इज़ द ओल्ड एलुवियम एंड जो खादर होती है दैट इज़ द न्यू एलुवियम एंड बोथ आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियम सॉइल। तेराई रीजन जो होता है वो वेट एंड स्वॉम्पी रीजन होता है और जो भाबर का रीजन होता है वो इमीडिएटली शिवालिक्स के नीचे आता है। शिवालिक्स के इमीडिएट नीचे हमारे नॉर्दर्न पार्ट के वर्टिकल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लाट्यू ऑल राइट।
part of the peninsular plateau lying to the north of which river covering a major area of Malwa plateau is known as Central Highlands. So बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, हमारे सेंट्रल हाईलैंड कौन सी रिवर के ऊपर होते हैं? नर्मदा, तापी, माही, महानदी. So the right answer is A, नर्मदा. नर्मदा रिवर के ऊपर, as you can see from here, ये है हमारी नर्मदा रिवर और इसके एकदम ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स. नेक्स्ट, डैश रेंज इज बाउंडेड by Central Highland on the south and Aravalli on the northwest. कौन सी रेंज है जो सेंट्रल हाईलैंड्स उसका साउथ बनाते हैं एंड अरावली उसका नॉर्थ वेस्ट बनाती है? तो यहाँ अरावली और उसका साउथ यहाँ सेंट्रल हाईलैंड्स. तो ये कौन सी रेंज होगी? दिस रेंज हैज़ टू बी सी, विंध्या रेंज. तो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं ये विंध्या रेंज है, इसका साउथ बना रहा है सेंट्रल हाईलैंड और इसकी वेस्ट बना रही है अरावली रेंज. नेक्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द डैश बट नैरोअर इन द डैश. सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ से वाइड है और कहाँ से नैरो है? So the right answer to this question is वेस्ट टू ईस्ट. सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो वेस्ट में वाइड है, W फॉर वाइड, W फॉर वेस्ट, एंड नैरो है ईस्ट में. नेक्स्ट, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड आर लोकली नोन एज डैश एंड फर्दर द further it is not used, it is eastward direction. Further eastward direction is known as dash. Okay, so the right answer is yes, you guessed it correct, A, बुंदेलखंड, भागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लाट्यू. तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये मैप है, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है मालवा प्लाट्यू और इसके साथ में बुंदेलखंड और भागेलखंड है, और फर्दर ईस्ट में अगर हम जाएं तो ये है छोटा नागपुर प्लाट्यू. ये सब कंप्राइज होके बनता है हमारे सेंट्रल हाईलैंड. तो द राइट आंसर इज बुंदेलखंड, भागेलखंड, छोटा नागपुर प्लाट्यू. नेक्स्ट, द छोटा नागपुर प्लाट्यू मार्क्स द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स. इट इज़ ड्रेन्ड बाय विच रिवर? छोटा नागपुर प्लाट्यू में कौन सी रिवर आती है? दिहांग नहीं आएगी, सोन नहीं आएगी, कोसी और दामोदर में से कौन सी है? तो छोटा नागपुर प्लाट्यू अभी अभी हमने देखा ये वेस्ट बंगाल के ज़्यादा क्लोज हो जाता है. तो द राइट आंसर टू दिस इज़ दामोदर रिवर. नेक्स्ट, द महादेव, द कैमूर एंड द माइकाल रेंज forms the dash extension of Deccan Plateau. Northward, southward, westward, eastward. महादेव, कैमूर एंड माइकाल रेंज डेक्कन प्लाट्यू के कहाँ पर आते हैं? So the right answer is D, eastward direction. See if you can have a look here. तो ये है महादेव हिल, ये है माइकाल रेंज, ये है कैमूर रेंज, और ये हमारे डेक्कन प्लाट्यू के ईस्टवर्ड साइड पर आ रही है. ओके, सो नाउ यू नो द लोकेशन ऑफ द रेंजेस. नेक्स्ट, कार्बी एंगलोंग प्लाट्यू एंड नॉर्दर्न काचर हिल्स आर अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लाट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, पूर्वांचल हिल्स, नन ऑफ द अबव.
सिंपल। कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू और काचर हिल्स किसका पार्ट है? द राइट आंसर इज ए, डेक्कन प्लेट्यू। यस, द राइट आंसर इज डेक्कन प्लेट्यू। कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू, नॉर्दर्न कच्चर हिल, हमें ऐसा लग सकता है कि ये पूर्वांचल हिल्स हैं, लेकिन नहीं। कार्बी एंग्लोंग एक्चुअली प्लेट्यू है और ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, फर्दर नॉर्थ ईस्टवर्ड पार्ट है। सो इफ़ यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर और यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये इंडिया का ईस्टवर्ड पार्ट है और यहाँ पे है कच्चर हिल्स और यहाँ पे है कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू। ये बेसिकली हमारे मेघालय रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट, गारो घासी जयंतिया हिल्स कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं? सिंपल एंड रिपीटेड क्वेश्चन। सो द राइट आंसर टू दिस इज, यस यू गेस्ड इट राइट, मेघालय अगेन। मेघालय को और हम क्या बोलते हैं? मेघालय को हम मेघालय में चेरापूंजी है, चेरापूंजी में मौजनराम है, जिसको हम वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कहते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर, गारो खासी एंड जयंतिया लाइन लगा के तीनों रेंजेस हैं एंड ये मेघालय रीजन में है, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर। थाल, भोर एंड पाल हिल घाट्स आर इन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, बनारस, प्रयागराज। थाल, भोर एंड पाल घाट कहाँ पर है? वेल, द राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। सी, दिस इज थाल घाट, दिस इज भोर घाट, दिस इज पाल घाट और ये मेजर पासेस हैं वेस्टर्न घाट में जाने के। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये काफ़ी कंटिन्यूअस हैं और इनमें जाने के लिए हमें पासेस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कंटिन्यूअस हिल्स हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस and can be crossed only through passes. Well, I just said it, so again it's true. Then the ghats are lower than the eastern ghats. क्या वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट से लो होती हैं? No, the right answer is higher. So correct answer is C, only one is true. 54th. First, the eastern ghats are dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. Second, the western ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the ghats. First में बोल रहा है कि ईस्टर्न घाट्स में जो हैं बहुत सारी रिवर्स आ जाती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ठीक बात है। वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन होती है जिससे कि मॉइस्ट विंड्स जो है वो वेस्टर्न स्लोप्स तक आ पाती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक द आंसर इज बोथ आर ट्रू। ए पार्ट, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम डैश टू डैश, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। The right answer is north to south. ओके, तो जो ये घाट्स हैं ये हम हिल्स की बात नहीं कर रहे जो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगी, ये नॉर्थ टू साउथ चलती हैं क्योंकि ये इस तरह की घाट्स हैं, ठीक है। ये इंडिया का सदर्न पार्ट है और ये घाट्स हमारी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, इसको हम एक और तरीके से लर्न कर सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो नीचे की तरफ पाई जाती है, यानी कि साउथ की तरफ जो हाइट है वो और इंक्रीज़ हो जाती है और ज़्यादातर जो हिल स्टेशंस हैं वो हमारे साउथ इंडिया के बिल्कुल साउथ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, A Anaimuri, B Dodabetta, C Mahendragiri, D Shevroi Hills.
वेल येस यू गेस्ड इट राइट, द राइट आंसर इज अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ये वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट हिल है, और महेंद्रगिरी ये जो है ये ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट हिल है। बाकी डोडा बेटा जो है ये भी वेस्टर्न घाट की है, शेवरॉय ईस्टर्न घाट का है। नेक्स्ट, शेवरॉय हिल्स एंड जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ वेस्ट घाट। आई थिंक आई जस्ट आंसर्ड इट, सो द राइट आंसर इज ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे लाइन लगा के सारी हिल्स के नाम हैं। ये नीलगिरी हिल्स हैं, ये डोडा बेटा है, ये अनाईमुडी है, अनामलाई है, ये अनाईमुडी है, ये कार्डमम हिल्स हैं। यहाँ से जवाड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई ये हिल्स हैं। उद्गम मंडलम इज़ पॉपुलरली नोन एज कुर्ज, ऊटी, मुन्नार, कोडाईकनाल। उद्गम मंडलम ये कौन से हिल स्टेशन का नाम है? Yes, you guessed it right. The right answer is B, Ooty. Next, Ooty and Kodaikanal are in which state? Okay, तो हमें पता चल गया ऊटी का नेम क्या है, लेकिन ऊटी और कोडाईकनाल ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? Yes, the right answer is Tamil Nadu. Okay, consider the following statements and answer. Part of the peninsular plateau, which is black soil area, is known as Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Okay, तो आई थिंक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट्स हैं। ब्लैक सॉइल वाले एरिया को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड, वोल्केनिक ओरिजिन की है तो इग्नियस रॉक होंगे। वोल्केनिक रॉक इग्नियस होते हैं, येस दैट्स राइट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Next, what are Burchens? Islands, undulated coastal strips, crescent shaped dune, none of the above. Burchens क्या होते हैं? Yes, you guessed it right. Burchens are crescent shaped dunes. जो crescent shape के sand dunes होते हैं उन्हें Burchens कहते हैं। You can have a look from the picture over here, and ये एक जो आपका dune है वो कुछ इस shape का होता है। The northern part of the western coast is called dash, central is called dash, and southern is called dash. Very easy. वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, तो वेस्टर्न कोस्ट का एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है KKM. So the right answer is KKM, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। 62. Well, I said mnemonic, but ये कोई mnemonic नहीं है। Okay, 63. The eastern coastal plains are known as dash in the northern part and dash in the southern part. Eastern coastal plain की बात हो रही है, तो the right answer is northern Sircar and Coromandel coast, B. तो यहाँ इस मैप के थ्रू हम देख सकते हैं कोंकण कोस्ट इज हियर, Malabar is here, and northern Sircar is here, Coromandel is here. Next, the Chilika Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha in the south of dash delta. ओके तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। चिलिका लेक जो है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, ठीक है, ओडिशा के अंदर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कौन से रिवर के डेल्टा में बनता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। द राइट आंसर इज ए, महानदी। नेक्स्ट, व्हेन वाज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमेंडाइव नेम्ड एज लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप का ओल्ड नेम है ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमेंडाइव। कब बना था ये? द राइट आंसर इज डी, 1973 के अंदर इनका नाम चेंज होके लक्षद्वीप आइलैंड हो गया था। 66. द पिटी आइलैंड्स, अ बर्ड सेंचुरी, इज लोकेटेड इन?
पिटी आइलैंड कौन से आइलैंड के अंदर लोकेटेड है? ये एक बर्ड सेंचुरी है, लक्षद्वीप. द राइट आंसर इज सी, लक्षद्वीप आइलैंड. विच आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स? A. Barrier reef, B. Atoll, C. Fringing reef, D. None of the above. The right answer is B. Atolls. तो यहाँ हम देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर है कोरल रीफ्स की. नेक्स्ट, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज़ अ पोर्शन ऑफ एलिवेटेड सबमरीन माउंटेन्स? कौन सा आइलैंड ग्रुप है जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि सबमरीन माउंटेन्स हैं? ए. अंडमान एंड निकोबार, बी. लक्षद्वीप, सी. बोट, डी. नान. द राइट आंसर इज ए. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नेक्स्ट, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज डैश. इट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? पिटी आइलैंड, द नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड, द बैरन आइलैंड, नेल आइलैंड. Yes, you guessed it right. The right answer is C, the Barren Island. The last question. Which plate drifted towards north due to convectional current after being separated from the Gondwana land? A. Indo-Eurasian plate, B. African plate, C. Indo-Australian plate, D. None of the above. कौन सी प्लेट जो थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्प्लिट हो गई थी? वैसे तो ऑलमोस्ट सारी प्लेट्स नॉर्थ डायरेक्शन में गई थी, बट हम ये कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई द आंसर इज सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. सी, दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. दिस इज़ पैंजिया 250 मिलियन ईयर्स अगो था, पूरा एक इकट्ठा लैंड मास था. देन ये स्प्लिट हुआ लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड के अंदर. गोंडवाना लैंड हमने किया था साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया था. एंड देन ड्रिफ्ट होते होते ये जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ से बेटर पता चलेगा, इंडो प्लेट ये ऊपर जाती रही और किससे टकरा गई जाकर? यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई, और यही टकराने से हमारे हिमालयाज़ फॉर्म हो गए थे. ओके, so this is how India and the Himalayas were formed, and hence we have reached to the end. Now you can calculate your score. If your score is 65 above, then excellent. Keep preparing, you are doing it good. If your score is 55 to 65, very good, you can do it, you can make it with more practice. 40 वालों को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एंड बिलो 55 मीन्स आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच.